Hello everyone. I think you all are healthy and fine. In this corona epidemic, always use mask and sanitizer. And when you are talking to a person, keep a proper distance at least 1 meter between two persons. Okay? So in the last video, whose link will be given in the last of this video, I have solved question number 1, 2 and 3. How to compare the ratio of A1, A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Okay? Today we will start question number 4. Exercise 3.2, pair of linear equation in two variable. Question number 4. Question number 4 is, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. मतलब क्या करना है कि consistent या inconsistent पता करना है. मैंने आपको बताया है कि consistent, what is consistent pair of linear equation? Consistent pair of linear equation is that pair of linear equation which have one solution or many solution. Inconsistent pair of linear equation is that solution which have that pair of linear equation which have no solution, whose graphical representation is parallel line, that is known as inconsistent, and whose graphical representation is intersecting line or coincident line, that pair of linear equation is known as consistent pair of linear equation. So come to question number 1. Question number 1 is given 4th first, x plus y is equal to 5, and second one is given 2x plus 2y is equal to 10. Okay? 2x plus 2y is equal to 10 and x plus y is equal to 5. So see here you can see x plus y is equal to 5. Okay, this is 2 will be common. From both the side you can take common 2, x plus y is equal to 2, 5. 2 to cancel. This will be x plus y is equal to 5, and this is also x plus y is equal to 5. You can see these two equations are equal. Okay, these two equations are equal. So when you write it in standard form, x plus y minus 5 is equal to 0. This is equation number 1. This is x plus y minus 5 is equal to 0. This is equation number 2. Now you can see here a1, a2 both are equal, b1, b2 both are equal, and c1 and c2 both are equal. So if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then what can you say? If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, it means that the pair of linear equation has infinitely many solutions. Okay, so directly we can write here a1 upon a2 is equal to 1 by 1, b1 upon b2 is equal to 1 by 1, and c1 upon c2 is equal to minus 5 by minus 5 is equal to 1 by 1. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Therefore these pair of equation are consistent. Consistent मतलब क्या हुआ कि जिसके एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो. तो जब ये तीनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे. तो जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो इट कैन बी सॉल्व्ड ग्राफिकली. अब इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? देखो ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया.
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस वाई, यहाँ बना दोगे एक बॉक्स बना दो। फिर ये क्या हो गया यहाँ x और ये y की वैल्यू 1 रखो, x क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, y की वैल्यू 2 रखो, x क्या हो जाएगा 3, y की वैल्यू 3 रखोगे, x क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी आपका सेकेंड इक्वेशन है, इसकी भी वैल्यू ठीक उसी तरह आएगी, इसका भी एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई ये भी होगा, सेम वैल्यू इसकी भी निकलेगी, जो वैल्यू उसकी आएगी वही वैल्यू क्या होगी इसकी भी आएगी। ठीक है, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक तरह से जैसे ये 4 1 तो x4 मान लो यहाँ आ जाता है, ये 1 यहाँ आ जाता है, फिर x3 और 2 यहाँ आ जाता है, इस तरह की एक लाइन बनेगी और ठीक उसी के ऊपर दूसरे ग्राफ की भी लाइन बनेगी। यहाँ आप लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समझ गए? तो जो भी आपके कॉन्जिस्टेंट है, मतलब कि जिनकी वैल्यू आप निकल रही है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होंगे मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, x और y के डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अगेन कम टू क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड। Again you have to check it is consistent or inconsistent. Okay, so for consistent or inconsistent, first you have to write it in the standard form x minus y minus 8 is equal to 0. Okay, this is the first equation, and this one 3x minus 3y minus 16 is equal to 0. This is second equation. Okay, now compare a1 upon a2 दैट इज x के साथ कौन सा नंबर है 1 है, तो 1/3, b1 अपॉन b2 क्या ये -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16 दैट इज 1/2. Okay, because minus minus cancel, 8 1 ja 8 और 8 2 ja 16. Here you can see a1 upon a2 is equal to 1/3 and b1 upon b2 is equal to also 1/3. Okay, c1 upon c2 is equal to 1/2. So here you can write a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो ये क्या होगा, ये किसकी कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर पैरेलल लाइन, एंड पैरेलल लाइन हैव नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन मीन्स inconsistent pair of linear equation. Okay, therefore these pair of linear equations is inconsistent. ठीक है, now come to question number 3. Again in question number 3, the first equation is 2x plus y minus 6 is equal to 0. Okay, this is first equation, and second equation 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. This is second. Okay, second question you can see here, it all divisible by 2, so you can reduce it. It all divisible by 2, so you can reduce it. If you don't want to reduce it, no problem, but if you reduce it, your equation will be more easier, more convenient. So you have option, you can reduce any equation if all the terms are divisible by a single number, or if you want that without reducing it I will solve, then you can solve it, no problem. Here again we will compare a1 upon a2. See here 2/4. Okay, 2/4 means if you cancel it, this is 1/2. Okay, then b1 upon b2. See here b1 upon b2, y के साथ कौन सा नंबर है 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2. Okay, third one c1 upon c2,
ये क्या है, दिस इज -6/-4, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 3/2। अब यहाँ देखिए a1/a2 1/2 आ रहा है और b1/b2 -1/2 आ रहा है, तो डायरेक्टली ये लिख देंगे हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या कंडीशन होती है, इट हैज वन सॉल्यूशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है, क्रॉस करता है, it means it is intersected at one point and that's why it has only one solution। ठीक है, तो ये क्या होगा, therefore these equations are consistent। ओके, अब ये कॉन्जिस्टेंट हो गया। देखो फर्स्ट नंबर भी कॉन्जिस्टेंट था और थर्ड नंबर भी कॉन्जिस्टेंट है, तो जैसे मैंने फर्स्ट बताया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसी तरह इसको भी आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक उसी तरह करोगे, 2x = 6 - y और x = 6 - y/2 वैल्यू निकालोगे, वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन दोनों आपको ग्राफ पेपर पे करना है। इसको लिख लो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफ से इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ मैंने कई सारे क्वेश्चंस में बताए हैं, आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ देखिए ये भी रिड्यूस हो सकता है, 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है, x - y - 1 हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ कंपेयर करिए a1/a2, देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो 2/4 क्या हो जाएगा, = 1/2। b1/b2 ये देखिए -2/-4, ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। और c1/c2 -2/-5, -2/-5 कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/5। अब यहाँ देख सकते हो a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गया, c1/c2 इक्वल नहीं है, तो हियर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या लिख देंगे, दीज इक्वेशंस आर इनकॉन्जिस्टेंट। ओके, तो देखिए टोटल फोर्थ में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्जिस्टेंट है और थर्ड कॉन्जिस्टेंट है, इन दोनों को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में मैंने बताया ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, थर्ड आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद आप ये लिखोगे कि here the lines are coincident, therefore this equation has infinitely many solution, लेकिन ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक इसी तरह थर्ड नंबर में भी ग्राफ पेपर पे ही रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद वहाँ क्या आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी थर्ड में। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो एक सोल्यूशन होगा, जैसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी यहाँ से x और y पे आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर खींच दोगे, तो जिस पॉइंट पे x का परपेंडिकुलर आएगा वो x की वैल्यू होगी, और जिस पॉइंट पे y का परपेंडिकुलर आएगा वो y की वैल्यू होगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर अधिक है। मतलब कि विड्थ अगर आपको पता है तो लेंथ जो है उससे क्या है, 4 मीटर एक्सेस है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि पहला सेंटेंस देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब देखिए यहाँ हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर अपॉन 2 कितना दिया हुआ है, = 36। ठीक है, तो पेरीमीटर = क्या होता है बेटा, 2, पहले ये लिख लेंगे, लेट द विड्थ
y एंड लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर। तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो l हमारा x है और b कितना है y है, अपॉन ये 2 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ है इसलिए पेरीमीटर अपॉन 2 हम करेंगे। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 36। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 36। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहां दूसरा इक्वेशन क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। लेंथ जो है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम कि जो है लेंथ x मानते, विड्थ x मानते और लेंथ x प्लस 4 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं इसलिए हमें 2 वेरिएबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ x मीटर हो गया और विड्थ क्या है y है, तो लेंथ कितना है y से 4 मीटर अधिक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसे इक्वेशन जब बनाओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। समझ गए? अब जब सेकेंड इक्वेशन हो गया, अब इसमें पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन आपको बतानी है। तो अब देखिए यहाँ एक मेथड हम यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और दूसरा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को। ठीक है, ऐड करने पे क्या होगा, ये x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यहां लिख देंगे हम एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया तो x 2x हो गया और ये y क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये 36 और 4 कितना हो गया 40। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। अब x हमने किसको लेट किया है, x हमने लेट किया है किसको, लेंथ को। तो लेंथ हो गया हमारा कितना, यहां के बाद आप यहां आएंगे। ठीक है, लेंथ हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है, और विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ आपने क्या निकाला है y लेट किया है। तो अब इसको किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ आपका 20 निकल गया, तो अब इस लेंथ की वैल्यू यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी है 20 आई है, x की वैल्यू 20 आई, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। तो विड्थ कितना हो गया 16 मीटर और लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया, हमने एक मेथड से सॉल्व किया इसको, एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। पहले भी मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोथ आर सिमिलर थिंग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, बिना सॉल्यूशन के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग होगा, किसका कोइंसिडेंट होगा और किसका पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ चेक करना है। तो पहले केस है, एक इक्वेशन दिया गया है, एक और आपको इक्वेशन लिखना है जो कि सेटिस्फाई करता है इंटरसेक्टिंग लाइन को। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
बस सिंपल सा है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक ऐसा इक्वेशन लिखिए जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक है। तो ये 4x लिख दिया, यहाँ 5y लिख दिया, ये -3 कुछ भी लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये 2/4 1/2 हो जाएगा और ये 3/-5। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें देखो डिफरेंट स्टूडेंट्स के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर है। मेरा आंसर कुछ और हो सकता है, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप यहाँ 5x माइनस 8y लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ठीक इसी तरह पैरेलल लाइन में क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल लाइन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब इसके लिए लिखिए, ये तो हो गया आपका पहला इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, a1/a2 मतलब ये 4x हो गया, और ये a1/a2 b1/b2 इक्वल होना चाहिए, तो ये 6y कर दिया, क्योंकि ये 2/4 1/2 होगा, 3/6 भी 1/2 होगा, और ये -24 कर दिया इज इक्वल टू 0। अब 24 कर दिया तो ये 1/3 हो जाएगा, ये दोनों 1/2 और ये 1/3, तो क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। अब तीसरा, हाँ कंडीशन सब में लिखोगे, ये याद रखना, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखोगे, कंडीशन लिखोगे। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमने यहाँ लिख दिया 4x, क्योंकि 2/4 1/2 हो जाएगा, 6y ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये 16 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, बात समझ में आ रही है। ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक इक्वेशन दिया हुआ है, बाकी एक और इक्वेशन लिखने हैं जिससे कि इंटरसेक्टिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. Set the triangular region. Okay. Now see here. Two equations are there. X minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. First of all, we have to find the value of x and y. After it, we will draw the graph. Okay. This is the first equation x minus y plus 1 is equal to 0. तो x इक्वल टू y को ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस y हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 माइनस 1 x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो 3 माइनस 1 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी पहले इक्वेशन से। ठीक इसी तरह दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू ये माइनस 12 राइट साइड जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस 12 और माइनस 2y। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, ध्यान दो, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 12 होगा और 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। फिर y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो 3 2 जा 6। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वैल्यू रखी है वही आप रखें, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा। तो y 3 रखते हो तो x जो है 2 हो जाता है। अब y 6 रखो तो 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12 क्या हो जाता है 0, 3 0 जा 0। तो y 6 रखते हो तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आते हैं ग्राफ पे। अब पहला इक्वेशन देखो, x0 y1, x0 ध्यान दो यहाँ पे, x0 y1 यहाँ आ जाएगा, ये समझ रहे हो। फिर x1 y2, x1 y2 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर x2 y3, x2 y3 ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको जोड़ते हुए एक लाइन ये बन जाएगी, इसका नाम हम लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। फिर दूसरे पे आते हैं x4 y0, x की वैल्यू 4 y0, ये देखो मार्क किया है हमने, दिख रहा है x4 y0, ठीक।
उसके बाद से x2 y3 यही पॉइंट फिर होगा, ठीक है, और x0 y6 x0 y आपका आ गया क्या 6। अब इन तीनों को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन मेड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है यही ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन है। अब इसके क्या लिखने हैं, तीनों ट्रायंगल के 3 पॉइंट होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ये देखो ये कहाँ है, x -1 है और y 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 0, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये जो है 2 और 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 और 0, ठीक है। और इस लाइन का नाम लिख दीजिए आप, ये लाइन जो है किसके लिए है, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया और ये ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो 3 कोऑर्डिनेट आर, या लिख सकते हो 3 कोऑर्डिनेट of the triangle are -1 0 2 3 and 4 0, ठीक है। ये 3 जो है इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको, और इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और अच्छा फिगर बनेगा, ठीक है ना। Okay, so that is the end of the exercise. You have to solve question number 4, 5, 6 and 7 in your notebook. In question number 4, you have to find that which pair of linear equation are consistent. So in fourth, first and third are consistent. You have to solve it in the graph. Okay, first compare and then find out that which one are consistent and which is not, and those who are consistent you have to represent them graphically. Question number 5, 6 I have told you, 7 this is also. So this 4, 5, 6, 7 question you have to solve in your notebook. Question number 1, 2, 3 was in previous video. So this lesson is in 2 part. In the previous video, pair of linear equation in 2 variable exercise 3.2 part 1, and this video is pair of linear equation in 2 variable part 2. In the first video, link is given here, you can click the link and see the solution. Question number 1, 2, 3 has been solved in this link, and in this video I have solved 4, 5, 6, 7. So that's all for today. Always wear mask, use sanitizer, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.